Hello, listening friends. We are delighted that you're back with us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप फिर से हमारे साथ हैं। I am praying that God will use these messages to bless your life. मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर इन संदेशों को आपके जीवन को आशीष करने के लिए इस्तेमाल करे And encourage you to do something great for God. और आपको परमेश्वर के लिए कुछ महान करने के लिए प्रोत्साहित करे। I want to begin by telling you a story. मैं आपको एक कहानी बताते हुए प्रारंभ करना चाहता हूं। It's a story about a beautiful cathedral in Europe. यह यूरोप में एक सुंदर गिरजाघर की कहानी है। This cathedral was very famous for a large, magnificent stained glass window. ये गिरजाघर इसकी एक बड़ी और शानदार और रंगदार शीशे की खिड़की के लिए बहुत प्रसिद्ध था। And one day there was a violent storm. और एक दिन बहुत प्रचंड तूफान आया And this storm shattered the beautiful window into 1,000 pieces. और इस तूफान ने इस खूबसूरत खिड़की को हजारों टुकड़ों में बिखेर दिया। And the church custodian hesitated to discard the fragments. और गिरजाघर का अभिभावक इन टुकड़ों को हटाने से झिझक रहा था। So instead of throwing it away, he put them in a box and stored them away in the church basement. इसलिए इन्हें बाहर फेंकने के बजाय उसने इन्हें एक संदूक में डालकर इसे गिरजाघर के तहखाने में रख दिया। Sometime later, a well-known artist came and petitioned the trustees of the cathedral to give him the fragments, which they did. कुछ समय बाद एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार आया और गिरजाघर के प्रबंधकों से विनती की कि वो उससे वो टुकड़े दे दें जो उन्होंने उसे दे दिए। They did not know what his real purpose was. वो नहीं जानते थे कि उसका असल उद्देश्य क्या था। But 2 years later, परंतु 2 साल बाद the artist invited the church trustees to his studio. उस कलाकार ने गिरजाघर के सब अभिभावकों को अपने कला कक्ष में आमंत्रित किया। And there he unveiled his major work. और वहां उसने अपने बड़े कार्य पर से पर्दा उठाया। To their astonishment, the restored window looked more beautiful than the original one. उनको आश्चर्यचकित करते हुए वो मरम्मत की गई खिड़की पहले की खिड़की से कहीं अधिक खूबसूरत दिख रही थी। I want to apply this story to our lives. मैं इस कहानी को अपने जीवनों पर लागू करना चाहता हूँ। Most of us at some point in our lives experience the blasting of a storm. हम में से अधिकतर लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर आंधी की गड़गड़ाहट का अनुभव करते हैं। And these storms sometimes come and blast in the midst of the blessing. और ये तूफान कई बार आकर हमारी आशीषों के बीच में फटते हैं। You may be going through one of those experiences right now. आप इस वक्त इनमें से किसी अनुभव में से गुजर रहे हो सकते Or हैं। you may have experienced one in the past. या शायद आपने अतीत में ऐसे किसी तूफान का अनुभव किया होगा। Some of you have already experienced God's restoration work in your life. आप में से कई पहले ही अपने जीवन में परमेश्वर के मरम्मत कार्य का अनुभव कर चुके हैं। But if you have not experienced such a blasting storm, I promise you, you will. परंतु यदि आपने अभी तक ऐसे प्रचंड तूफान का अभी तक अनुभव नहीं किया है तो मेरा वादा है कि आप जरूर करेंगे। But I want to tell you this. परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, God specializes in restoring the fragments of life into something more beautiful and more meaningful than ever. परमेश्वर जीवन के टुकड़ों को पहले से कहीं अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण रूप देने में माहिर है। God specializes in making beauty out of ashes. परमेश्वर राख में से भी सुंदरता उत्पन्न करने में माहिर है। The blasting and the blessing sometimes go hand in hand in life. आंधी और आशीष जीवन में कई बार साथ साथ चलते हैं। The high and the low are often close companions. उतार चढ़ाव अक्सर करीबी साथी होते हैं। Trials and triumphs often work in fast succession. परीक्षाएं और विजय अक्सर आगे पीछे चलते हैं। In fact, this is precisely what is happening at this point of Elijah's life. बल्कि ठीक यही इस वक्त एलिया के जीवन में हो रहा है। To those of you who have joined us for the first time, आप में से जो पहली बार हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं, we are in the midst of a series entitled How God Works. परमेश्वर कैसे कार्य करता है, हम इस संदेश श्रृंखला के मध्य में हैं। We are focusing on the life of Elijah. हम एलिया के जीवन पर गौर कर रहे हैं। First, we saw God hiding Elijah in the Brook Kerith. सबसे पहले हमने देखा कि परमेश्वर ने एलिया को कीरत के नाले में छिपा रखा था। Often, when God hides us, it is to humble us. अक्सर जब परमेश्वर हमें छिपाता है तो ये इसलिए होता है कि हमें नम्र करे।
When he hides us, it is to provide for us. वो जब हमें छिपाता है तो हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए ऐसा करता है। When God hides us, it is to protect us. जब परमेश्वर हमें छिपाता है तो ये हमें सुरक्षा देने के लिए होता है। We may resent God's hiding places for us, हम चाहे हमारे लिए परमेश्वर के छिपने के स्थानों से नाराज हों, but it is only in those hiding places that God works his purposes out in us. परंतु केवल इन्हीं छिपने के स्थानों में ही परमेश्वर हमारे अंदर अपने उद्देश्य पर कार्य करता है। We saw in the last message how God led Elijah to the land of Baal worship. पिछले संदेश में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर एलिया को बाल उपासकों के देश में लेकर गया। Zarephath, सारपत, the Phoenician city. फुनिशियों का शहर। Zarephath is where God gave Elijah an opportunity to exercise risking faith. सारपत ही में परमेश्वर ने एलिया को रिस्क के विश्वास का इस्तेमाल करने का अवसर दिया। Zarephath was a pagan city whose name means melt because they used to melt metals there. सारपत एक अन्य जाति शहर था जिसके नाम का अर्थ है पिघलना, क्योंकि वहां धातुओं को पिघलाते थे। God was purifying his servant by melting away all the dross of the flesh so that he may trust in God alone. परमेश्वर अपने दास से शरीर का सारा विकार पिघलाकर अपने दास को शुद्ध कर रहा था ताकि वो केवल परमेश्वर पर भरोसा रखे। In this message we will find Elijah still in Zarephath. इस संदेश में हम पाएंगे कि एलिया अभी भी सारपत में है। God is about to move him from passive testing to active testing. परमेश्वर अब उसे खामोश परीक्षा से क्रियाशील परीक्षा में डालने जा रहा है। Here we will see how after the blessing of the flour and the oil comes the testing of calamity and death. यहाँ हम देखेंगे कि आटे और तेल की आशीष के बाद कैसे विपत्ति और मृत्यु की परीक्षा आती है। 1 Kings 17. पहले राजा 17 अध्याय। Elijah and the Phoenician woman and her son all were experiencing a daily miracle. एलिया, वो स्त्री और उसका पुत्र रोज आश्चर्यक्रम का अनुभव कर रहे थे। A daily blessing, प्रतिदिन की आशीष, a daily provision. प्रतिदिन का प्रावधान। The Phoenician woman had risked in faith at the challenge of the man of God. उस विधवा स्त्री ने परमेश्वर के जन की चुनौती देने पर विश्वास में रिस्क लिया था। Now we read that her son becomes ill and dies. अब हम देखते हैं कि उसका पुत्र बीमार होकर मर जाता है। The Hebrew word means his soul left him. इब्रानी शब्द का अर्थ है कि उसकी आत्मा उसे छोड़कर चली गई। This leaves us in no doubt that the boy was dead. इससे हमें कोई संदेह नहीं रहता कि लड़का मर चुका था। In verse 18, the woman said to Elijah, 18 पद में स्त्री ने एलिया से कहा, "What do you have against me, man of God? हे परमेश्वर के जन, तेरे मन में मेरे विरुद्ध क्या है? Did you come to remind me of my sin and kill my son?" क्या तू मुझे मेरे पाप का स्मरण दिलाने और मेरे बेटे की मृत्यु का कारण बनने आया है? I want you to notice that verse 17 follows verse 16. मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि 17 से पहले 16 पद है। In verse 16 16 पद is a picture of Zarephath सारपत की तस्वीर है, as a little village एक छोटे से गांव के रूप में, which has been the place of uninterrupted, unhampered miracle, जो अब बाधा रहित और निर्विघ्न चमत्कारों का स्थान बन चुका था। with new oil and new flour every day. हर दिन नए आटे और नए तेल के साथ। When they woke up in the morning, जब वो सुबह उठते थे, they experienced a miracle. वो चमत्कार देखते थे। Before they retired for bed about sundown, सूर्यास्त के बाद बिस्तर में जाने से पहले they experienced a miracle. वो चमत्कार का अनुभव करते थे। So in verse 16, you read that God's miraculous blessing was coming upon them. तो 16 पद में आप पढ़ते हैं कि परमेश्वर की चमत्कारिक आशीष उन पर आ रही थी। And then immediately in verse 17, you read of life's tragic blasting. और फिर तुरंत 17 पद में आप जीवन के दुखद तूफान को देखते हैं, All at the same time. सब एक ही समय पर। The woman's cry in verse 18 is very natural. 18 पद में स्त्री की पुकार बहुत स्वाभाविक है। Please listen carefully to what I'm going to tell you. कृपया बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Don't allow anyone, including yourself, to send you on a guilt trip just because you asked the question why. अपने सहित किसी को भी इस कारण से आपके अंदर दोष की भावना उत्पन्न मत करने दीजिए कि आपने ये प्रश्न पूछा कि क्यों। Why is a natural question. क्यों एक प्राकृतिक प्रश्न है। The greatest heroes of the Bible asked why. बाइबल के महानतम नायकों ने पूछा क्यों।
In the book of Judges chapter 6, न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय में when the Midianites were about to decimate Israel, जब मिद्यानी इसराइलियों को बर्बाद करने वाले थे, Gideon asked, गिदोन ने पूछा, why did God allow this to happen? परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया? Job, who lost his family and a huge fortune and ended up on a heap of rubble, asked, जब अयूब ने अपना पूरा परिवार और पूरी संपत्ति खो दी और आखिर में राख के ढेर पर बैठ गया, तो उसने पूछा, why wasn't I born dead? मैं मृत पैदा क्यों ना हुआ? If you recall the words of the Lord Jesus Christ on the cross, यदि आप क्रूस पर से यीशु के वचनों को याद करें, he said, उसने कहा, God, my God, why thou hast forsaken me? मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? God's own son asked why. परमेश्वर के अपने पुत्र ने पूछा क्यों? So don't let people put you under guilt when you ask God why. तो लोगों को आपके अंदर दोष की भावना मत लाने दीजिए जब आप परमेश्वर से पूछते हैं क्यों। There are times in life when the highest of dreams get crushed. जीवन में ऐसे समय भी आते हैं जब बड़े बड़े सपने चकनाचूर हो जाते हैं। There are times in life when the best of hopes are dashed. जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सबसे बड़ी आशाएं टूटती हैं। There are times in life when you find yourself hanging upside down. जीवन में ऐसे समय आते हैं जब आप खुद को उल्टे लटके हुए पाते हैं। And the natural question at that time, like the widow of Zarephath, is why? और ऐसे समय में सारपत की विधवा के समान स्वाभाविक प्रश्न यही है, क्यों? I am convinced that this question must be pounding the doors of heaven from broken-hearted people everywhere. मुझे यकीन है हर जगह से टूटे मन वाले लोगों के द्वारा किया जाता ये प्रश्न स्वर्ग के दरवाजों को जोर जोर से खटखटाता रहता है। It rises from hospital beds. ये प्रश्न अस्पताल के बिस्तरों से उठता है। It rises from lonely bedrooms. ये अकेले शयन कक्षों से उठता है। It rises from grave sites. ये कब्रिस्तानों से वास्ता पड़े लोगों के मन से उठता है। It rises from each personal Gethsemane when a troubled soul pleads in private agony. ये हर उस व्यक्तिगत गतसमनी से उठता है जब कोई व्याकुल जान अकेले में पुकारती है। I am not talking about pain that results from disobedience. मैं अनाज्ञाकारिता के परिणाम स्वरूप मिलने वाली पीड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ। I am not talking about the grief that is natural consequence of sin and rebellion. मैं उस गम की बात नहीं कर रहा हूँ जो पाप और विद्रोह का स्वाभाविक परिणाम है। I am not talking about the natural results of departing from biblical principles. मैं बाइबल के सिद्धांतों से दूर चले जाने के स्वाभाविक परिणामों की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about being in the middle of God's will, doing God's work the best way you know how, when suddenly life's blast blows you away. मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर की इच्छा के मध्य में होने की, जब आप परमेश्वर का कार्य उत्तम रीति से कर रहे हैं और अचानक जीवन की आंधी आपको उड़ा कर ले जाती है। Many of us understand the paradox of this woman. हम में से अधिकतर लोग इस स्त्री के विरोधाभास को समझते हैं। While she knew God's blessings in one area, जबकि वो एक क्षेत्र में परमेश्वर की आशीषों को जान रही थी, she knew God's blasting in another. दूसरे क्षेत्र में वो परमेश्वर की आंधी को भी जानती थी। In March of 1964, I committed my life to the Lordship of Jesus Christ. मार्च 1964 में मैंने अपना जीवन यीशु मसीह की प्रभुता के अधीन कर दिया। In July of that year, उसी साल के जुलाई महीने में my mother, who was my prayer warrior, died at the age of 54. मेरी माँ की मृत्यु हो गई 54 साल की आयु में, जो कि मेरी प्रार्थना योद्धा थी। In 1990, 1990 में as I was experiencing the blessings of God in my work and my life, जब मैं अपने काम और अपने व्यवसाय पर परमेश्वर की आशीष अनुभव कर रहा था, within a period of 2 weeks' time, 2 सप्ताह के अंदर अंदर I had one child in the intensive care unit in one hospital, मेरे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, परंतु वो पैदा हुआ एक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में, and my wife was about to go to another hospital for a serious operation. और मेरी पत्नी एक गंभीर ऑपरेशन के लिए दूसरे अस्पताल जाने वाली थी। God's blessings and life's blasting. मेरे जीवन पर परमेश्वर की आशीषें और आंधियां। Look at verse 12. 12 पद को देखिए। When there was a famine, and the woman was ready to accept the fact that she and her son were both dying, जब वहां अकाल पड़ा हुआ था और वो स्त्री इस तथ्य को स्वीकार करने वाली थी कि वो और उसका पुत्र दोनों मर जाएंगे, there was calmness in her heart about this. उसके हृदय में इस बात को लेकर चुप्पी छाई हुई थी। There was a sense of resignation to this calamity. इस विपत्ति के सामने हार मानने का एहसास था। But in verse 18, परंतु 18 पद में she attacks Elijah with anger and accusation. वो एलिया पर क्रोध और दोष मढ़ती है। Please listen carefully. कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए, This is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है।
Our emotions are unpredictable. हमारी भावनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। You cannot trust your emotions. आप अपनी भावनाओं पर भरोसा नहीं कर सकते। Emotions are like the barometric pressure. भावनाएं वायु मापक के समान होती हैं। They go up and they come down easily. वो फिर ऊपर उठती हैं और फिर आराम से नीचे आ जाती हैं। I have noticed that we've just run out of time. मैंने अभी ध्यान दिया कि हमारा समय समाप्त हो गया है। And I want to tell you so much more about this. और मैं इस बारे में आपको और बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। So will you promise me that you will tune in next time so you can hear the rest of this? तो क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप अगली बार भी हमें सुनेंगे ताकि आप कहानी का बाकी भाग सुन सकें? Until then, I wish you God's richest blessings. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।